Assalamu alaikum. In the series Mycology, this is lecture number 8, and in this video we are going to discuss about subcutaneous mycosis. Let's begin. Subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis, they are a group of fungal infections that affect the deeper layers of our skin, subcutaneous tissues, and occasionally muscles and bones. These subcutaneous mycosis includes sporotrichosis, chromomycosis, and mycetoma in our syllabus. So we'll discuss this one by one. The first subcutaneous mycosis is sporotrichosis. Sporotrichosis. This sporotrichosis is caused by Sporothrix shenki. The characteristic of this causative agent is it is thermally dimorphic. Thermally dimorphic का मतलब है कि it exists in two morphological forms. First is mold form and other is yeast form. जब ये mold form में है तो इसकी जो structure है वो hyphenated है, mycelium वाली filamentous structure है. It with spores, and the spores are known as conidia, and these are present in the soil. ये जो yeast other form है, it is present in the body at 37 degrees centigrade, and the yeast is cigar shaped yeast. Its habitat is either soil or vegetation. This disease, sporotrichosis, its transmission occurs through skin, but skin which is punctured. और वो स्किन जो उसमें जो वोन्स हैं, पंचर वोन्स, वो आते हैं रोज थॉर्न्स या फिर अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स इन द गट, बिकॉज दिस कॉजेटिव एजेंट इट इज़ प्रेजेंट इन सॉइल और वेजिटेशन. तो वहाँ से अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट या रोज़ के थॉर्न्स लग जाते हैं, उससे जो पंचर हो जाता है, उसके थ्रू इसके जो मोल्ड के स्पोर्स हैं वो स्किन में एंटर करते हैं एंड डिजीज़ कॉज करते हैं. दैट इज़ वाई दिस डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज रोज़ गार्डनर्स डिजीज़. द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड, जैसे ही स्पोर्स स्किन में एंटर करते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू यीस्ट फॉर्म. दे काजेज लोकल एब्सिसेस, इधर पस फॉर्मेशन या अल्सरेशन विथ नोड्यूल्स अलॉन्ग द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स. ये लिम्फेटिक्स के अंदर कॉज करते हैं local abscess or ulceration. That is why also known as ascending lymphadenitis. This disseminated ये जो disease है, this can be disseminated but in immunocompromised host only. Clinical findings of this disease, sporotrichosis, includes कि it appeared as a brownish spot in the skin. Skin पे इसके brownish spots बन जाते हैं. Lab diagnosis includes डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे हमें अगेन सिगार शेप्ड बडिंग यीस्ट नज़र आएंगे. कल्चर पे हमने इसकी मार्फोलॉजी, टिपिकल मार्फोलॉजी विच इज़ मोल्ड की जो हाइफी है, माइसीलियम, वो नज़र आएगी. उसके लिए यूजुअली स्किन टेस्ट नहीं की जाती. ट्रीटमेंट इसका एंटी फंगल थेरेपी, आइट्राकोनाजोल या फिर पोटेशियम आयोडाइड ओनली फॉर क्यूटेनियस ना लिम्फोक्यूटेनियस. प्रिवेंशन, स्किन शुड बी प्रोटेक्टेड व्हेन गार्डनिंग. गार्डनिंग के दौरान स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से या रोज थॉर्न से पियर्स ना हो. That's all about sporotrichosis. In summary, sporotrichosis is caused by Sporothrix shenki and it is thermally dimorphic organism. के टू फॉर्म्स हैं, मोल्ड एंड यीस्ट. मोल्ड सॉइल में प्रेजेंट होता है, यीस्ट बॉडी में प्रेजेंट होता है. ये मोस्टली सॉइल या वेजिटेशन में होता है, तो ट्रांसमिशन भी वहाँ से होती है. अगर स्किन पे कोई भी वुंड लग गया तो वहाँ से मोल्ड के स्पोर्स एंटर करेंगे और इस बॉडी में अल्सरेशन या फिर लोकल एब्सेस कॉज करेंगे, पर्टिकुलरली अलॉन्ग द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स. क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी ये ब्राउनिश स्पॉट बनाते हैं. लैब डायग्नोसिस हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, कल्चर और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन. Our second subcutaneous mycosis is chromomycosis. This is also known as chromoblastomycosis. Chromomycosis, ये जो नाम दिया गया है, it's because of its pigmentation. This is caused by several soil fungi which include Flyophora, Cladosporium, Fonsecae. These all जो भी causative agents हैं, they are demititious fungi. They are not dimorphic. They are not dimorphic. They are demititious fungi. Demititious fungi का मतलब है इनकी जो हाइफी है या इनके जो स्पोर्स हैं कोनिडिया, they are dark colored.
इनका ये जो कलर है, पिगमेंटेशन है, देयर कैरेक्टरिस्टिक है, इनका ये डिफाइन करता है। ग्रे और ब्लैक कलर के इनके हाइफी और कोनिडिया होते हैं। दे अफेक्ट द इंडिविजुअल्स विद फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू सॉइल, प्लांट्स और डिकेइंग वेजिटेशन। ट्रांसमिशन अगेन, स्पोर्स इंटर होंगे स्किन में थ्रू ट्रामा। स्किन में कोई ट्रामा हो गया तो इसके स्पोर्स इंटर करेंगे। दे आर नॉट डायमॉर्फिक, दैट्स व्हाई दे ओनली एग्जिस्ट इन मोल्ड फॉर्म थ्रू आउट देयर लाइफ। पैथोजेनेसिस, ये ग्रेनुलोमाटाइस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इनकी, ये पेपुलर वॉट लाइक लीजन्स कॉज करते हैं, पर्टिकुलरली लेग्स और फीट पे। एक तो वॉट लाइक लीजन्स और लेग्स और फीट पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे ज़्यादा, और क्रस्टिंग एब्सेसेस, पस फॉर्मिंग और क्रस्टिंग कलर्ड ये पिगमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे ब्राउनिश कलर के इन द पिक्चर नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ द मेलानिन प्रोड्यूस बाय दिस कॉजेटिव फंजाई। क्योंकि ये कॉजेटिव फंजाई पिगमेंटेड है, मेलानिन प्रोड्यूस्ड है, तो ये जो वॉट लाइक लीजन्स काज करते हैं वो भी क्रस्टिंग होते हैं, वो भी कलर्ड होते हैं। दीज आर क्लिनिकल फाइंडिंग्स। नाउ द लेब डायग्नोसिस, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, यहाँ कल्चर करेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे अगेन डार्क ब्राउन राउंड फंगल सेल्स नज़र आएंगे। द ल्यूकोसाइट्स और जार्न सेल्स जो हम वो पस एस्पायरेट करके देखेंगे। और कल्चर पे फंगल कॉलोनीज ग्रो करेंगी क्योंकि ये मोल्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है को, तो हाइफी और माइसीलियम वगैरह नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट इसकी ओरल फ्लूसाइटोसिन भी देते हैं या थायोबेंडाजोल। Prevention, again it involves the avoiding direct contact with soil or decaying plant material. Contact को avoid करें तो prevention खुद ही हो जाएगी। So this was all about the chromomycosis. In summary, it is caused by several soil fungi, not only one. Characteristic, these are not dimorphic, they are demititious fungi, which means their conidia or hyphae are dark colored. और एक्सपोजर टू सॉइल एंड प्लांट्स यहीं से ट्रांसमिट होगा। स्पोर्स स्किन में इंटर करेंगे। पैथोजेनेसिस, ग्रेनुलोमाटाइस इन्फेक्शन कॉज करता है। फाइंडिंग्स में पेपुलर वॉट लाइक लीजन्स का नज़र आते हैं। और लेब डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी पे भी हमें डार्क ब्राउन कलर के फंगल नज़र आएंगे और कल्चर पे फंगल की कॉलोनीज़। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी, इट विल बी डिस्कस्ड इन एंटी फंगल थेरेपी इन फार्माकोलॉजी वीडियो। The last is subcutaneous mycosis in our syllabus is mycetoma. This mycetoma is again soil fungi. So आपने याद रखना है जो भी subcutaneous ये हैं mycosis हैं, ये सब soil fungi हैं। Again enters in body through wounds on feet, hands or beak. It also causes abscess with pus discharge through sinuses. और इसके पस में कॉम्पैक्ट कलर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें भी ये ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट कलर ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट, नो इफेक्टिव ड्रग इज़ प्रेजेंट और इसके लिए सर्जिकल एक्सिशन इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सबक्यूटेनियस माइकोसिस and we end this video here. In the next video we'll discuss about we'll start the next mycosis, which are the systemic mycosis. Thanks for watching.